Okay, students, so far we have done up to exercise 2.5 where we solve equations, problem sums, and we find the solutions. Now we start with exercise 2.6. So it is again we have equations and we have to find the values. So question number 1, 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. Now students, here we have to find the value of x. So what to do? Same way as I told you, beta, wherever we have an integer, we can write them as any number divided by 1. So how to solve further? We have to cross multiply. So 1 is multiplied with this term, 3x is multiplied by 2. So what we have? 8x minus 3 into 1, 2 into 3x. So open the bracket, what do you get? It will remain same. 8x minus 3, 3 to the 6x. Now, then here we have variables 8x, 6x. So what we do? Shift the terms having variables to one side. It is plus. This plus become minus here. And minus 3 to that side. It will become plus 3. 8x minus 6x is what? 2x is equal to 3. It means the value of x comes to be 3 upon 2. Why 2? Because here 2 is multiplied by x, but when you shift this 2 to this side, it will divide. So in this way, x is equal to 3 by 2 is the solution of this equation. Understand? Okay, students. Now try question number 2 and 3. They are of same type. Yourself. Let's start with question number 4. 3y plus 4 whole upon 2 minus 6y is equal to minus 2 upon 5. Okay. So now what to do? Same step. Here 5 is in the denominator. We have to multiply this 5 with the numerator of the left hand side, and then 2 minus 6y is multiplied by minus 2. So what we do? 3y plus 4 into 5 minus 2 into 2 minus 6y. बच्चों याद रखना कि जब कभी भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे? वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 3y into 5 15y, 4 into 5 20, minus 2 into 2 minus 4. यहाँ पर बेटा आप गलती करते हो. Now when you open this bracket, this is minus, this is minus. Minus 1 is plus. 2 into 6 is 12. 12y. Okay. Now shift the terms of variables. ये है दोनों variables. इनको यहाँ shift कर दो. On one side 15y minus 12y, because ये plus था यहाँ minus बन गया. It is minus 4 plus 22. That side will become minus 20. 15y minus 12y is 3y minus minus plus. इनको प्लस करेंगे, साइन वही आएगा जो बड़े टर्म के साथ है. हेंस वी हैव minus 24. सो वैल्यू ऑफ y minus 24 upon 3. 8 3s are 24. So this is how we are able to get the value of y to be minus 8. So means what is minus 8? It is the solution of this equation. Understand, students? Okay, now students, now we start with the word problems. Now question number 6, it is same as we have done in exercise 2.4 में भी ऐसा क्वेश्चन था. Let us do question number 7. Just read the question. बेटा स्टेटमेंट सम्स में या वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे जरूरी होता है इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना. ओके. सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. सो लेट अस स्टार्ट. हमें क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर जो है किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है. सो लेट न्यूमरेटर
of a rational number be x. Okay, so tell me, so therefore what will be the denominator? बोलो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है हमें कि डिनोमिनेटर जो है ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. न्यूमरेटर से 8 ज्यादा, तो क्या हो गया? x प्लस 8. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब अभी हमने किसी कंडीशन को यूज करके इनको यूज करना है, इनको ज्वाइन करना है. सो क्या लिखा गया है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17. बेटा बताओ न्यूमरेटर क्या होता है? जो टर्म रैशनल नंबर में ऊपर होती है, मान लो ये है x4y, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर. तो क्या बोला गया है कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर क्या था? x था. अगर इसमें हम 17 इंक्रीज कर दें एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, सो हमारा डिनोमिनेटर क्या था? x प्लस 8. अब इसको क्या बोला गया? इट इज डिक्रीज बाय 1, मतलब -1 कर दिया. याद रखना, इंक्रीज मीन्स प्लस, डिक्रीज मीन्स माइनस. आई रिपीट, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 3/2 आएगा. सो दिस विल बी योर इक्वेशन. सो सेम वे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 17 इंटू 2, बिकॉज 2 यहां शिफ्ट होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू दिस होल टर्म, x प्लस 8 माइनस 1. अब बच्चों को पता है कि 8 माइनस 1 क्या होता है? 7 होता है. इट इज 7. x प्लस 17 इंटू 2. नाउ ओपन द ब्रैकेट. x इंटू 2, 2x. 17 इंटू 2, 34. 3 into x, 3x plus 21. Now shift the terms of variables to one side. 2x minus 3x. ये 34 है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा. 21 minus 34. I hope you understand. 2x minus 3x is what? Minus x. 21 minus 34 is minus 13. So minus minus cancel out. So it means the value of x comes to be 13. But question क्या था कि हमें रैशनल नंबर निकालना था. सो देयरफॉर रैशनल नंबर क्या होगा आपका? देखो रैशनल नंबर क्या होगा कि हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे, तभी रैशनल नंबर बनेगा हमारा. अब तो इसमें न्यूमरेटर क्या है? x है. डिनोमिनेटर क्या हमने लिया था? x प्लस 8. अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो. x इज व्हाट? 13. नीचे क्या आएगा? 13 प्लस 8. जहां जहां x 13 पुट कर दिया, योर आंसर कम्स टू बी 13 प्लस 8 इज 21. सो बच्चों, दिस विल बी योर रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सिमिलरली सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एज द एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, but some students have doubt in last question of previous exercise, that is 2.5. अब हम एक वो क्वेश्चन भी करते हैं, बिकॉज काफी बच्चों ने बोला कि सर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है. इट इज 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f माइनस 9. सो अब बेटा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बट आप ये डेसिमल देके कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस डेसिमल. व्हाट वी राइट? 25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो वी राइट 100. 4f माइनस 3. सिमिलरली यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, अगेन 5/100. 10f माइनस 9. दिस इज द स्टेप. नाउ सिंप्लीफाई इट. 25 इंटू 1 25, 25 4 100. अंडरस्टैंड? यहाँ पर 5 1 5, 5 20 100. So what do we have? 1/4 times 4f minus 3, 1/20 times 10f minus 9. एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है? ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 2.6 में किए. वी कैन राइट दिस एज अपॉन 4 10f minus 9/20.
अब आगे वही करेंगे जो पहले किया था, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 4f माइनस 3. ये 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 10f माइनस 9. जस्ट ओपन इट. 20 इंटू 4 80f, 20 इंटू 3 60, 4 इंटू 10 40f, 9 4s are 36. अब shift the terms of f to one side. Okay, so now shift minus 60 to that side, it will become plus 60. 80 minus 40 is 40f. Minus 36 plus 60 is 24. So f comes to be 24 upon 40. Now 4 into 10 40. 4 is 24. Your answer comes to be 6 by 10. अब आप इसको 0.6 भी ले सकते हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में डेसिमल था तो हमने इसको इसमें चेंज कर दिया. आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके स्टूडेंट्स, so try rest of the parts.